kids, how are you all? I hope you are all fine. So, today we read your chapter 2, The Cap Seller and the Monkeys. So, shall we start? Let's start. Once there एक was a man who एक बार की बात है एक आदमी था sold caps जो टोपी बेचता था. He carried उसने बहुत सारी caps in a basket. एक बास्केट में उसने बहुत सारी टोपियां रखी थी. On his head अपने सर पर. He was a cap seller. वो एक कैप सेलर था. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं. Here is a cap seller who have taking caps in his basket. One day he slept under a tree. एक दिन वो पेड़ के नीचे सोया था. There were monkeys on the tree. पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे. They came down from the tree. वो पेड़ से नीचे आए. They took away all the caps. उन्होंने सारी टोपियां ले ली. The cap seller woke up. Cap seller उठा. He saw the basket was empty. उसने देखा जो बास्केट है वो तो खाली है. He looked around. उसने आसपास देखा. And above और ऊपर. The monkeys were wearing his cap. Monkeys ने उसकी टोपियां पहनी हुई थी. What do you think the cap seller would do now? जरा सोचो उस वक्त कैप सेलर ने क्या किया होगा. The cap seller shook his fist at the monkeys. कैप सेलर ने एक नजर monkeys पे देखी जो एक दूसरे की कॉपी कर रहे थे. They also did the same. वो भी एक जैसा कर रहे थे वो ऐसा कर रहे थे. The cap seller scratched his head. कैप सेलर ने अपने सर खुजाया. The monkeys did the same. monkeys ने भी सेम किया. The cap seller had an idea. तो कैप सेलर को एक बहुत अच्छा आइडिया आया. उसने अपनी जो टोपी पहनी थी उसे बास्केट में डाल दी. Into a empty basket. अपनी खाली टोकरी में डाल दी. The monkeys also did the same. Monkeys ने भी सेम किया. The cap seller got all his cap and went away happily. कैप सेलर को उसकी सारी टोपियां मिल गई और वो वापस खुशी खुशी चला गया. Let us speak. Answer the following questions. इन क्वेश्चंस के आंसर करें. Do you have a cap? What is its color? क्या आपके पास टोपी है? तो उसका कलर क्या है? So, yes, I have a cap. Its color is red. Let us speak. चलो कुछ बातें करें. Answer the following questions. इन क्वेश्चंस के आंसर करें. Do you have a cap? क्या आपके पास टोपी है? What is its color? उसका कलर क्या है? ये आप अपने टोपी को देख के लिख सकते हैं. जैसे कि मेरे पास एक टोपी है और उसका कलर है रेड. What do you think? जरा सोचो. The monkeys threw the cap in the basket. Monkeys ने जो कैप्स थी वो बास्केट में क्यों फेंकी होंगी? So the monkeys threw the caps in the basket because of what? Because they were copying the cap seller.
What is the first sound in words in each row? ये जो वर्ड्स है यहाँ पे एक एक रो में जो दिए हुए हैं इनके जो वर्ड्स इनमें जो वर्ड्स दिए हैं उनका फर्स्ट साउंड क्या है? सो शैल वी स्टार्ट? कैप, कैप, क, कैट, क, कैट, क, कोट, कोट, क, कैप यानी टोपी, कैट यानी बिल्ली, कोट यानी कोट, मंकी, म, म, monkey, mango, m, mango, mouse, m, mouse, monkey यानी बंदर, mango यानी आम, mouse यानी चूहा. Third, basket, b, bat, b, ball, b, ball. बास्केट यानी टोकरी, बैट यानी बल्ला, बॉल यानी गेंद. लेट अस राइट. चलो कुछ लिखें. सर्कल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम साउंड इन ईच रो. इसमें आपको क्या करना है? उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो सेम साउंड में हो हर एक रो में. तो लेट्स स्टार्ट. कार, no, tap, rat, hat, cat. So tap यानी नल, rat यानी चूहा, cat यानी बिल्ली और hat यानी टोपी. Let's see what's else. Mug, rug, and let's see what's else. There is nothing. यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा. मग यानी मग और रग यानी दरी. Okay. Write the number 1 to 4 next to the pictures according to the story. स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको 1 से लेकर 4 तक काउंटिंग इसमें लिखनी. जैसे कि दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 and here is number 4. Okay. Okay, let's color and write. So, a tree, a monkey. So, let's color it. So, you can also do like this. A tree यानी एक पेड़, a monkey यानी बंदर. Here is a cat, a basket. So, let's color it. Let's start it. So, here is a cap and here is the basket. Cap यानी टोपी, basket यानी टोकरी. Cats, rats, ants and more. बिल्ली, चूहा और चींटी और बहुत सब. Write their names. उनके नाम लिखिए. A for ant. B for bee. C for cat. Ant यानी चींटी, बी यानी मधुमक्खी, कैट यानी बिल्ली. D dog. E elephant. F fish. D dog यानी कुत्ता, elephant यानी हाथी.
फिश यानी मछली. G for goat, H for hen, I for inkpot. गोट यानी बकरी, hen यानी मुर्गी, इंकपॉट यानी स्याही. J for jug, K for kite, L for lion. J for jug यानी जग, K for kite यानी पतंग, L for lion यानी शेर. M for monkey, N for nest, O for owl. So M for monkey यानी बंदर, N for nest यानी घोंसला, O for owl यानी उल्लू. P for parrot, Q for quill, R for rat. So parrot यानी तोता, quill यानी पंख, rat यानी चूहा. S for snake, T for tiger, U for uniform. Snake यानी सांप, टाइगर यानी बाघ और यूनिफॉर्म यानी ड्रेस. ओके. V for van, W for whale, X for x-ray. V for van यानी van, whale यानी whale, x-ray यानी x-ray. Y for yak, Z for zebra. Y for yak, Z for zebra. Zebra यानी zebra. Okay. Write your name here. So we can write any name here. For example, Pratik. Let us sing. चलो गाना गाएं. Butterflies. Butterflies, butterflies up, up, up. Butterfly, तितली, तितली, ऊपर, ऊपर, ऊपर. Butterflies, butterflies, down, down, down. तितलियां, तितलियां, नीचे, नीचे, नीचे. Butterflies, butterflies, in. Butterflies, butterflies, out, out, out. तितली, तितली, अंदर, अंदर, अंदर. तितलियां, तितलियां, बाहर, बाहर, बाहर. Would you like to replace butterflies with anything else? क्या आप बटरफ्लाइज को किसी और चीज के साथ बदलना पसंद करेंगे? ट्राई जरूर करिएगा, जैसे कि फ्लावर्स, रोजेस, डेजी, एटसेट्रा. लेट अस स्पीक. चलो बातें करें. आंसर द क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए. टीचर, लुक अप. व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री? बच्चों जरा देखो पेड़ पे क्या है? चाइल्ड, बच्चे ने कहा, आई सी बर्ड्स ऑन द ट्री. मैंने देखा पक्षी ट्री पे यानी पेड़ पे. लुक डाउन. व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड? जरा नीचे देखो ग्राउंड पे क्या है? आई सी cow
on the ground. Look up. What do you see in the sky? I see birds. And on the tree, we see kite. Okay. Say and clap. बोलो और ताली बजाओ. Say aloud each line of both the poems. ये दोनों पोम्स को तेज तेज बोलो. क्लैपिंग फॉर एवरी वर्ड. हर वर्ड के लिए क्लैप करते हुए. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज, अप, 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 butterflies, butterflies, down, down. Rolly, Polly, up, up, up. Rolly, Polly, down, down. Let us write. चलो कुछ लिखें. Encircle the words that have P in them. उन वर्ड्स को सर्कल करो जिसमें P है. Put, put यानी रखना. Mat यानी दरी. Sat यानी बैठना. Cap टोपी. टॉप ऊपर. कैट बिल्ली. पैट पैट. फैन यानी पंखा. एप्पल यानी सेब. पिंक यानी पिंक. टैन यानी टैन. टैप यानी नल. Encircle the matching letters in each row. हर एक रो में जो मैचिंग लेटर्स हैं उनको सर्कल करें. जैसे कि F, F, B, B, O, O, W, W. Okay. Match the words with the same initial syllable. हर एक वर्ड्स को उनकी सेम जो से मिलते जुलते हो उनसे मैच करें. जैसे कि मैं भी आपको दिखाती हूं. फॉर एग्जाम्पल डांस, रन, हॉप, sand, jump, run, dance, dog, hide, socks, rat, jet. Okay, so let's see how we can do it. Hop यानी कूदना. Hop, hop rat, hop dog, hop jet, hide, hop hide, hop socks. So hop, hop dog, sand, hide. Let us speak. चलो कुछ बातें करें. Listen and repeat. सुनो और मेरे साथ रिपीट करो. Some words have two syllable. कुछ वर्ड्स के पास दो सिलेबा है. Notice the words below. उन वर्ड्स को नोटिस करो. Monkey यानी बंदर. Monkey, monkey. Seller यानी बेचने वाला. Seller, seller. Basket यानी टोकरी. Basket, basket. Donkey यानी गधा. Donkey, donkey, donkey.
key. Okay, let us read. चलो बातें करें. Catch me if you can. अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ. A fat cat sat on a mat. एक मोटी सी बिल्लू दरी पे बैठी थी. I can catch you, little rat, said the cat. छोटे चूहे, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, ऐसा बिल्लू ने कहा. A little rat saw her. उस छोटू से चूहे ने उसे देख लिया. And hide in a hat. और वो एक टोपी में जाके छुप गया. No, no, you cannot, said the rat. चूहे ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे पकड़ ही नहीं सकती. The cat ran to catch the rat. जो बिल्लू थी वो इतनी तेज भागी ताकि वो चूहे को पकड़ सके. लेकिन हमारा चूहा भी कम नहीं था दोस्त बच्चों, वो भी बहुत तेज भागा. The rat ran and hid in a box. जो चूहा था वो दौड़ा 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 जाके बक्से में छिप गया. The lid of box did not open. जो बक्से की जो ताला था वो खुल ही नहीं रहा था. Ha ha ha! You cannot catch me, big cat, said the rat. बड़ी बिल्ली, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकती, ऐसा चूहे ने कहा. So here you can see, आप यहाँ देख सकते हो कि ये बिल्लू तड़प रही है उस चूहे को खाने के लिए. Okay. Help the mouse reach its home. चलो इस छोटे चूहे की मदद करते हैं उसके घर जाने के लिए. So here is a Mr. Mouse home. यहाँ पे मिस्टर माउस का घर है, तो चलो लेके चले. Yay! Now we reach on the home. Let us listen. चलो कुछ सुने. Close your eyes and listen to the words said by your teacher. चलो बच्चों फटाफट अपनी आंखें बंद कर लो और जो मैं वर्ड्स कहूंगी उन्हें ध्यान से सुनना. Cat, bat, fat, sat, mat, hat. कैट यानी बिल्ली, बैट यानी बल्ला, फैट यानी मोटा, सैट यानी बैठना, मैट यानी दरी, हैट यानी टोपी. What is the first sound in each of these words? इन वर्ड्स में पहला साउंड क्या है आ रहा है? जैसे कि कैट का क, बैट का ब, फैट का फ, सैट का स, मैट का म, हैट का ह. And what is the common in all these words? इन words में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? So वो है ये छोटू सा वर्ड at, 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 at. ये वर्ड्स कॉमन है. Let us make words by adding one letter to as soon the first has been done for you. देखो आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को जोड़ना है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बैट, सो हम ऐसे बनाएंगे कैट, फिर बनेगा मैट, फिर बनेगा फैट, फिर बनेगा रैट और फिर बनेगा हैट.
लिसन एंड डू द एक्शन दैट योर टीचर से। जो मैं कह रही हूं ना उसे फटाफट करो, ठीक है? जरा सुनो और उस एक्शन को करो एक बार। कैच द बॉल, फटाफट बॉल पकड़ो। थ्रो द बॉल, बॉल फेंको। हाइड अंडर अ टेबल, टेबल के नीचे छुप जाओ। ओपन योर बॉक्स, पेंसिल बॉक्स और बैग, या अपनी पेंसिल बॉक्स या फिर अपना बैग को खोलो। क्लोज योर पेंसिल बॉक्स और बैग, आपने पेंसिल बॉक्स या बैग खोली थी उसे बंद कर दो। से हुर्रे, और जोर से कहो हुर्रे। Now listen to the following words. Do you know what they mean? Ask your teacher. चलो, ये जो वर्ड्स है ना इन्हें ध्यान से सुनो, और क्या अगर आप इनका मतलब जानते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज कैच, यानी फेंकना, पकड़ना। थ्रो यानी फेंकना। हाइड यानी छुपना। ओपन यानी खोलना। से बोलना। क्लोज बंद करना। लेट अस रीड, चलो बातें करते हैं। ट्राई टू रीड द स्टोरी कैच मी इफ यू कैन अगेन बाय योरसेल्फ। अब आपको क्या करना है, एक बार फिर से कैच मी इफ यू कैन वाली जो स्टोरी थी ना उसे एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना, ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो। लेट अस डू, चलो ये करते हैं। What shall we make a cat and a rat mask? क्या होगा अगर हम एक कैट या फिर एक रैट का मास्क बनाएं? Look at the mask of cat from the last page of your book. अच्छा बच्चों, अभी एक काम करो, अपने बुक का लास्ट पेज फटाफट निकालो और उसमें जो पेज है उसको एक बार जरा देखो, उसमें एक मास्क बना होगा कैट का। कट आउट द मास्क विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपको उसको उसका उसको देख के आपको बनाना है। आपको सिर्फ उसकी हेल्प लेनी है, आपको उसे कट नहीं करना है, ठीक है? मेक होल्स ऑन द साइड, फिर साइड में छेद बनाएं। टाई स्ट्रिंग इन दिस होल, कुछ इस तरीके से आपको इन होल्स में स्ट्रिंग डालना है। योर मास्क इज रेडी टू यूज। अब आप इस पे कुछ ऐसे फेसेस बना के इसको रेडी है, आप इसके साथ खेलें और मजे करें। नाउ थिंक अबाउट द स्टेप फॉर मेकिंग अ मास्क ऑफ अ रैट। टेल योर फ्रेंड हाउ टू मेक अ मास्क ऑफ अ रैट। आप अपने देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे कैट का बनाया तो वैसे आपको मास्क ऑफ अ रैट का स्टेप्स बनाने हैं। ये आप अपने दोस्तों की मदद से पूछ सकते हैं। आर योर मास्क रेडी? इनैक्ट द स्टोरी। अगर आपका मास्क रेडी हो गया हो तो आप और आपका दोस्त, कोई चूहा बन सकता है तो कोई बिल्ली, और ये वाला एक्ट कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बॉक्स की जगह आप टेबल के नीचे छुप सकते हो और उसे बॉक्स की तरह शो कर सकते हो। लेट अस एक्सप्लोर, चलो कुछ एक्सप्लोर करते हैं। लुक एट द इंसेक्ट्स, चलो कुछ इंसेक्ट्स को देखो। फ्लावर्स, फूल, बर्ड्स, पक्षी, एनिमल्स, जानवर एंड ट्रीज अराउंड योर होम, और पेड़ पौधे अपने घर के आसपास। ड्रॉ सम ऑफ दीज एंड टेल योर फ्रेंड्स मोर अबाउट देम। इनमें से कुछ ड्रॉ करो और अपने दोस्तों को इनके बारे में कुछ और बताओ। ओके, लेट अस डू, चलो ये करें। हेल्प दीज एनिमल्स फाइंड देयर होम्स। इन एनिमल्स की मदद करो ताकि अपने घर जा सके। सो लेट्स हेल्प देम। ओके, so where a spider live? Spider live here. Where is a bee live? Bee यानी मधुमक्खी कहाँ रहती है? मधुमक्खी रहती है यहाँ। चींटी कहाँ रहती है बच्चों? चींटी रहती है यहाँ। अब बताओ बच्चों जरा,
शेर कहाँ रहता है? शेर रहता है यहाँ। शेर कहाँ रहता है? यहाँ। और हमारा प्यारा से छोटू सा रैबिट कहाँ रहता है? यहाँ। ओके। ओके। Ask anyone in your family to tell a story about animals. अपने फैमिली में आप अपनी दादी माँ, दादाजी, मम्मी, पापा को कहो कि वो आपको एनिमल्स की स्टोरी सुनाए. Try to share the story in English in the class. Listen to the stories shared by your friends in class. आपको क्या करनी है? कोशिश करना है कि ये जो स्टोरी है वो आप इंग्लिश में बता के सुनाए पूरी क्लास को. और जो आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं उन स्टोरीज को भी आपको ध्यान से सुनना है. In a small groups, choose any story that you heard. अब एक छोटे से ग्रुप में एक स्टोरी चूज करो जो आपने सुनी है और शेयर्ड इन द क्लास, जो आपने शेयर करी है. ड्रॉ पिक्चर फॉर द स्टोरी, प्रेजेंट द स्टोरी इन क्लास. आपको क्या करना है? पिक्चर बनानी है स्टोरी की और उसे प्रेजेंट करना है इन क्लास. सो मेरे हिसाब से यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है. थैंक यू. थैंक यू. और हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ. बाय बाय. बाय बाय बच्चों. और आशा करती हूँ आप सब हेल्दी रहना और हमारी स्टोरी जरूर देखना. लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज. बाय बाय.